Good morning, students. So we have our worksheet number 33 dated 18th September 2020, and it is in continuation of trigonometric ratios. So today we'll be doing the values of trigonometric ratios for different kinds of angles. Now we all know that these trigonometric ratios are always for the acute angles, because in a right angled triangle, if one of the angle is 90 degree, then obviously the rest two angles will always be less than 90. So they can assume the value between 0 and 90. Fine. So we'll be studying the values of these trigonometric ratios for different types of angles. So first of all, let us recall. Here we have the fill in the blank. You have to fill these up. So sin A will be equal to 1 upon dash. Now this dash, you know that sin A किसका reciprocal है? Cosec A का. So 1 upon cosec A. Tan A is 1 upon cot A. Sec A is 1 upon cos A. And similarly, you can do the D, E and F parts. So I'm leaving it on you. You will be filling it up. Okay. Now we have a question here. Can we find the values for different trigonometric ratios? Let us try. So here we move. We have a triangle ABC in which AB is given to be 1A, यानी वो unit length का है, हमने उसकी length ली है 1A, or you can simply say it as A, and BC is also 1A. So when we calculate the hypotenuse using the Pythagoras theorem, we'll be getting that the value of AC will be root 2A. Fine. So let me show it to you. See, we have it here. I have drawn it here for you. So unit length जो है AB और BC की वो A है, तो हमने Pythagoras theorem से calculate किया है that A square plus A square is equal to AC square. So AC will be equal to root 2A का square and AC will be equal to A root 2. Fine. तो अब हमने AC की वैल्यू निकाल ली A root 2. तो अब हमें पता है कि हमारा sin 45 क्या हो जाएगा. Sin 45 will be BC upon AC. That is, we know that sin 45 is what? Sine of any angle is perpendicular upon hypotenuse. So it will be A upon A root 2, and that will be A and A will get cancelled. So it will be 1 upon root 2. Okay. And similarly, here we see cos 45. Cos 45 will be base upon hypotenuse, that is AB upon AC, which is again A upon A root 2. एंड ए और ए कैंसिल होता है, तो आंसर आ जाता है 1 अपॉन रूट 2. तो हमें ये पता चल गया है यहाँ से कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 और कॉस 45 की भी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2. तो 45 डिग्री के तो हमें क्लियर हो गए साइन और कॉस. और ऑब्वियसली जब हम टैन निकालेंगे तो टैन क्या होगा? साइन अपॉन कॉस, दैट इज़ 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2, विच विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. Now let us find the values for 30 degree and 60 degree. Okay, now here I have taken a triangle. You can see here triangle ABC. इसमें तीनों sides जो हैं वो 2A के बराबर हैं, and I have drawn a perpendicular AD from A to BC. This one. And in this portion we see for example we consider triangle ABD. हमने ABD लिया है खाली अभी, तो उसमें जो हमारा BD होगा वो A हो जाएगा, and the rest of the things will be 2A. So that means this is A and this is 2A. तो अब मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल ABD लेती हूँ तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के what value do I get for A root 3? That is AD की वैल्यू आ जाएगी A root 3. ओके. अब हमें तीनों चीज़ें पता हैं. नाउ दिस इज़ एंगल 30. सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन एंगल 30 फर्स्ट. ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है. ठीक है. अब इस 30 डिग्री के एंगल के लिए अगर मैं साइन 30 निकालती हूँ तो साइन 30 क्या होता है हमारा? साइन 30 इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला है. दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज. सो इट विल बी A अपॉन 2A विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2. देन आई कम टू cos 30. cos 30 क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है? A रूट 3.
अपॉन 2a। तो यहाँ पर a और a कट गया तो क्या बचा, √3/2। अब हम आते हैं 60 डिग्री के एंगल पर। we'll concentrate on this angle now। अब 60 डिग्री के एंगल के लिए साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये वाला है और हाइपोटेन्यूज ये वाला है। तो परपेंडिकुलर है हमारा a √3 एंड अपॉन 2a। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। दैट इज साइन 30 डिग्री की हम बात कर रहे थे, तो सॉरी वी वर ऑन 60 डिग्री, सो √3/2। एंड कॉस 60 डिग्री अगर हम देखें तो कॉस 60 डिग्री के लिए हमारे पास बेस क्या है, ये, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो इट विल कम आउट टू बी a अपॉन 2a विच कम्स आउट टू बी 1/2। और अगर अब हम आते हैं tan 30 डिग्री पे, तो tan 30 डिग्री में हमारा होगा sin 30 अपॉन cos 30। तो 1/2 अपॉन √3/2, नीचे का 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/√3। सिमिलरली इफ़ वी सी tan 60 डिग्री, तो उसका क्या होगा, sin 60 अपॉन cos 60। सो दिस विल कम आउट टू बी √3/2 अपॉन 1/2 विच इज़ कम्स आउट टू बी √3। ये हमारा आंसर आ जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है। अब आपको देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, अरे बाप रे इतनी सारी वैल्यूज़ मैं कैसे याद करूँ, है ना। लेकिन आपको एक ट्रिक सिखाई जाएगी जिसमें कि आप इन वैल्यूज़ को बड़े आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ वी सी दिस ट्रिक। तो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि इस टेबल को, इस पूरे टेबल को आपने कैसे याद करना है। और वेन एवर यू गो फॉर योर एग्ज़ाम, इसको आप पहले ही रफ में या कहीं लास्ट वाले पेज पे आप इसको बना के रख लीजिए, सो दैट वेन एवर यू हैव टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चन, आप डायरेक्टली यहीं से वैल्यूज़ देखेंगे और फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने ये टेबल बनाई है, इसमें मैंने यहाँ पर रेशियो लिखे हैं एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0, 30, 45, 60 एंड आगे 90, ठीक है। यही वैल्यूज़ मेरी एज्यूम कर सकता है थीटा, या तो 0 होगा या 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा या 90 होगा। हमने इन्हीं वैल्यूज़ के लिए इनके रेशियोज़ को, इनके मेजरमेंट्स को याद रखना है। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने 0, 30, 45, 60, 90 लिख लिया। उसके बाद मैं नीचे लिख लूँगी नंबर। पहले मैंने सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 पहले मैंने ये लिख लिया इस कॉलम में, ओनली 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था उन सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये कर लिया। उसके बाद हम उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट जो हमने ऊपर लिखा था 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो जब हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आता है जो कि है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यूज़ हमारी इससे आ जाती हैं। अब आप देखिए इस कॉलम में स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, सबसे पहली बात तो इसका आंसर जो आएगा 0/4 का 0 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी क्या होता है, 0, ठीक है। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट में 30 पे, साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 का स्क्वायर रूट। तो 1/4 क्या होता है, 1/4 तो 1/4 आ गया। अब उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हो जाता है 1/2। अब 2/4 का स्क्वायर रूट हमारा ये साइन 45 की वैल्यू है। तो साइन 45 में पहले मैंने 2/4 क्या होता है 1/2, ये आपस में जब कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, और जब मैं उसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो वो बन जाता है 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद हम आते हैं साइन 60 पर। साइन 60 में हमारा 3/4 का स्क्वायर रूट है। तो 3/4 में 3 को तो √3 रह गया, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। तो आंसर आ गया √3/2। और अब लास्ट आता है साइन 90। साइन 90 में 4/4, 4/4 क्या होता है 1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ अगेन 1। तो ये मेरा साइन 0, 30, 45, 60 या 90 की मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने नेक्स्ट निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। हम जितनी भी हमने साइन की वैल्यूज़ लिखी थी 0 से 90 तक, अब हम उनको रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे।
तो रिवर्स डायरेक्शन में लिखने का क्या मतलब है, देखिए हम लोग जब साइन थीटा में गए थे तो हम इस डायरेक्शन में गए हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब मैं वापस चल पड़ूँगी, जो यहाँ पे था 1 था वो यहाँ आ गया 1, फिर जो यहाँ √3/2 था वो यहाँ आ गया, जो 1/√2 था 1/√2 1/√2 की जगह ही रहेगा, जो 1/2 था वो यहाँ आ गया और जो 0 था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक तरह से हमने उल्टी दिशा में सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। ओके, अच्छा अब इसके बाद अब मेरे पास साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी साइन की वैल्यूज़ आ गई 0 से 90 तक और कॉस की वैल्यूज़ आ गई 0 से 90 तक। अब हमें पता है नेक्स्ट जो हमारा होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास ऊपर दोनों वैल्यूज़ हैं हम उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 0/1, अब ये मेरे टैन थीटा की वैल्यूज़ निकल रही हैं, तो 0/1 क्या होता है 0, देन 1/2 अपॉन √3/2 किया, तो यहाँ पर ये 2 जो था वो कट जाएगा, तो बचा क्या 1/√3, देन 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आ गया 1, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 आपस में कैंसिल हुआ, क्या बचा √3 एंड 1/0। अब हम सबको पता है कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो 1/0 क्या होता है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब मेरे पास टैन थीटा की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब मुझे फिर से वापस उल्टी डायरेक्शन में चलना है। अब मैं फिर से इसको रिवर्स गियर में डाल दूँगी, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, जो मेरा 1/√3 था यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या था 1/√3। ठीक है, तो ये हम सारी रिवर्स डायरेक्शन में वापस चलेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉट थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो टैन थीटा लिखा पहले, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में चले तो कॉट थीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब हम आते हैं सेक थीटा एंड कॉजेक थीटा पे। अब सबसे पहले हमने कॉजेक थीटा लिया। कॉजेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो अब मुझे क्या करना है, 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0। अब 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, बिकॉज डिविजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। देन 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ऊपर देखते हैं 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये मेरी किसकी सारी वैल्यूज़ आ गई, कॉजेक थीटा की। ओके, अब लास्ट क्या बचा है हमारे पास, सेक थीटा। सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो ये सारी कॉस थीटा की वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं मुझे। अब मैं इनके रेसिप्रोकल्स लिखती जाऊंगी। तो देखते हैं 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3 और 1/√2 का √2, 1/2 का 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास सिर्फ हमने जब एक ट्रिक करी, आई एम अगेन रिपीटिंग, हमने क्या किया था, हमने पहले सारे एंगल्स लिखे, उसके बाद हमने नीचे डाला 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद उसको हमने डिवाइड किया हर नंबर को 4 से, और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हमने ये कर लिया उसके बाद मेरे पास जो पहली हैं वो सारी साइन थीटा की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब एक साइन थीटा की जब वैल्यू आ जाती है तो रिवर्स डायरेक्शन में चलूँगी तो कॉस की वैल्यूज़ आ गई। फिर साइन और कॉस को जब हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो टैन की वैल्यूज़ आ गई। अब फिर से रिवर्स डायरेक्शन में चले तो कॉट की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में साइन थीटा के सारे के रेसिप्रोकल्स लिया तो कॉजेक आ गया, और कॉस थीटा के सारे रेसिप्रोकल्स लिए तो सेक आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा टेबल आराम से बना सकते हैं। अब एक बार ये टेबल आपने जब भी कोई पेपर देना है, जब भी कोई आपने, वैसे तो आपको विद प्रैक्टिस ये सारे लर्न हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। बट इनिशियली बच्चों को बहुत मुश्किल आती है कि अरे हम ये इतना सारा कैसे याद रखें, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपको जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आप आराम से इस टेबल को सबसे पहले बना लो। इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, और उसके बाद आपने जब भी कोई क्वेश्चन करना है आप इस टेबल को आराम से रेफ़र कर सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू योर वर्कशीट। अब हम देख लेते हैं वर्कशीट के एग्जाम्पल्स को।
तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं सबसे पहले. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स. तो आपने ये बताना है कि sin 90 इज़ इक्वल टू cos 60. अब हम यहाँ अगर हम अपने टेबल को रेफ़र करें तो sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस इट इज़ फॉल्स. ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पे हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब x की वैल्यू निकालनी है और हमें ये 90 डिग्री दिया है, ये हमारा एंगल है थीटा, ये वाला. तो अब हमें ये हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू 10 दे रखी है. तो sin 30 हमें पता है, sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़. तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज़ है 10. तो और sin 30 की वैल्यू अब हमें ज़रूरत पड़ेगी. अब अगर हमें याद है तो हम लिख देंगे 1/2, नहीं तो हम अपने बनाए हुए टेबल को रेफ़र करेंगे. तो 1/2 इज़ इक्वल टू x/10 एंड हेंस x इज़ इक्वल टू 5. So this is how we attempt the questions. Okay. Now coming to example number 3. Example number 3 में भी आपको यही दिया हुआ है, sin 30 tan 45 प्लस tan 30 sin 60. तो आपने सिंपली इसकी वैल्यूज़ डाल देनी है टेबल से. हमें पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 इज़ 1, tan 30 इज़ √3/2 एंड sin 60 इज़ √3/2. तो हमने इनकी वैल्यूज़ डाली, इनको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया. एंड सिमिलरली हमने दूसरे वाला भी कर लिया. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. एंड नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस में देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स वेदर sin 60 इज इक्वल टू cos 30 एंड sin 45 इज इक्वल टू cos 45. ये सारे दिए हुए हैं. आपको सिंपली इनकी वैल्यूज़ कंपेयर करनी है. अगर वो आपस में इक्वल हैं तो ये ट्रू है और अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है. Now coming back to question number 2. So in question number 2 we are given this triangle ABC which is right angled at B और हमें AB की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर और एंगल C दिया हुआ है 30 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है AC एंड BC. ओके, अब हम देखें कि AC हमारा हाइपोटेन्यूज़ है, तो अगर हम साइन की वैल्यू लेते हैं तो हम AC निकाल सकते हैं. ओके, सो टू फाइंड AC we'll have sin 30 डिग्री हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़. सो sin 30 हो जाएगा हमारा 5/AC. तो 5/AC में 1/2. अब हमने sin 30 की वैल्यू डाल दी टेबल से, 1/2 इज़ इक्वल टू 5/AC और AC विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट एंड उसके बाद हम नीचे चलें तो टू फाइंड BC. अब हमें BC फाइंड आउट करना है. तो BC मेरा क्या है, बेस. तो बेस और हाइपोटेन्यूज़ में क्या रिलेशनशिप होता है, कॉस का. ठीक है, या फिर मैं सीधा tan से भी फाइंड आउट कर सकती थी. tan थीटा से हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी आ सकता था. तो यू कैन चूज़ एनीथिंग. सो cos 30 डिग्री इज़ इक्वल टू BC/AC. तो अब हमने cos 30 की वैल्यू डाली यहाँ पर, वो BC/10 हो जाएगा. तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC की वैल्यू आ गई 5/√3. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC और आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं. एंड द क्वेश्चन इज़ टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. सो वेरी इजी. ये हमें x दिया हुआ है और ये भी हमें x दिया हुआ है. तो हमने इसका निकाल लिया AC √2x. एंड नाउ sin 45, एंगल इज़ गिवन टू बी 45. सो sin 45 होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़ दैट इज़ 1/√2. cos 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़ दैट इज़ 1/√2. tan 45 होगा इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करके, तो आंसर आ गया 1. एंड cosec 45 होगा हमारा साइन का रेसिप्रोकल दैट इज़ √2. sec 45 होगा हमारा cos का रेसिप्रोकल दैट इज़ अगेन √2. एंड cot 45 होगा हमारा tan का रेसिप्रोकल दैट इज़ अगेन 1. So this is how we calculate all the values. Okay, so I hope today's worksheet is clear to you. और वो टेबल बनाना आप ज़रूर सीख लीजिए, अपने आप से एक बार बना के प्रैक्टिस कीजिए. Once you make the table, you will have no problem in doing the questions which are having the values of these ratios. Okay, now assignment for the day, because it is very necessary to do some extra questions. एक्सरसाइज 8.2 का सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको अपने आप से करने के लिए. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3. आफ्टर डूइंग द वर्कशीट you have to do these 2 questions and then only this worksheet will be complete. So that's all for the day. Thank you so much.